నమస్కారం ఆర్టీఐ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ కి స్వాగతం। పుట్టపర్తి 2 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా వచ్చినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ శాఖ మంత్రి శ్రీయుత దేవన్స్ చౌహాన్ కు పుట్టపర్తిలోని సాయి ఆరామం నందు బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధులు దుస్సాల్వాతో సన్మానించి గజమాలతో సన్మానించారు। అనంతరం సత్యసాయి జిల్లా ఐజేయు జాతీయ కమిటీ సభ్యులు అయ్యన్నగారి శ్రీనివాసులు ఆధ్వర్యంలో పలువురు పాత్రికేయులు కలిసి శ్రీ భగవాన్ సత్యసాయి జిల్లా కేంద్రంలో ₹1 కోటి అధునాతన సౌకర్యాలతో ప్రెస్ క్లబ్ తో పాటు జర్నలిస్టులకు గ్రంథాలయం మంజూరు చేయాలని, పాత్రికేయుల విధి నిర్వహణలో వార్తలు సేకరించే క్రమంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని, దీంతో వారి కుటుంబాలు వీధిన పడి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే అవకాశం ఉందని, దక్షిణ మా కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని, రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టులపై భౌతిక దాడులు జరుగుతున్నాయని, వాటిని అడ్డుకట్ట వేసి ఆపాలని, అలాగే కొన్ని పాత్రికేయుల డిమాండ్లను ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడి మెమరాండం అందించారు। అనంతరం ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీజీ ప్రవేశపెడుతున్న కేంద్ర పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాపీ కొడుతున్నాయని, నేరుగా మా బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న పథకాలు ఏవి కూడా ప్రజలకు అందడం లేదని, అంతేకాకుండా మా కేంద్ర నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేయడమే కాగా ఇక్కడ కూడా మా బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలే ప్రస్తావన తీసుకురాలేదని ఆయన తెలియజేశారు। వేదిక మీద ఉన్నారు। ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులు మంత్రి గారితో ప్రెస్ మీట్ కొనసాగించవచ్చు। పర్యటన 2 రోజులు పూర్తిగా కంప్లీట్ అయింది। ఈ రోజుతో దాదాపు మొత్తం ఏదైతే కుల సంఘాలు ఉన్నాయో వారితో ఒక మీటింగ్ జరగడం జరిగింది। శక్తి కేంద్ర మీటింగ్ ఒకటి, పోలింగ్ మీటింగ్ ఒకటి జరగడం జరిగింది। అదేవిధంగా రాష్ట్ర పదాధికారులు మరి జిల్లా పదాధికారులతో ఒక మీటింగ్ జరిగింది। వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రవాస యోజనలో భాగంగా 160 పార్లమెంట్లు దేశంలో సెలెక్ట్ అయితే మన సత్యసాయి జిల్లాలో కూడా సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది। మరి ఈ విషయాల మీద తను ఈ 2 రోజుల్లో పర్యటించిన అంశాలను కూడా మన మంత్రివర్యులు దేవన్స్ చౌహాన్ గారు తెలియజేస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। ధన్యవాదాలు। अखिल भारतीय जनता पार्टी की योजना अनुसार मेरा हिंदूपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आज 2 दिन का प्रवास रहा। पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 दिन से प्रवास कर रहा। मेरे ये प्रवास के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिस तरीके से इस क्षेत्र में यहाँ की गरीब बैकवर्ड जनता की अवगणना करती है, यहाँ के जो विकास की गति है वो थम गई है। यहाँ तक कि जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं वो फंड्स भी पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहे, या तो कहीं उसका नाम बदल के उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की है। और हमेशा एक कोशिश किया है कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रांत की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटीज एकदम भिन्न है। ग्राउंड रियलिटीज में मैंने ये पाया कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है वो स्कीम्स भी यहाँ के गरीब लोगों तक नहीं पहुँचती। आदरणीय यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए उन्होंने इन गरीबों को पक्का घर मिले, इन गरीबों को घर उज्ज्वला योजना पहुंचे, उस गरीबों के घर बिजली पहुंचे, हर घर नल पहुंचे, उन गरीब के जीवन में आयुष्मान भारत कार्ड हो जो हर परिवार को 5 लाख रुपीस का आरोग्य सुरक्षित बीमा प्रदान करता है। यहाँ
बिल्कुल योजनाओं का काम ठप हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यहाँ करीब 50,000 करोड़ रुपया पर क्वार्टर 6,000 रुपया जो इन परिवार को मिलता है। करीब 1 करोड़ जनता जो आंध्र प्रदेश की है वो गरीब को प्रधानमंत्री अन्न योजना की तहत फ्री में राशन मिलता है। इन गरीबों को हर घर नल की योजना की तहत पानी की सुविधा मिलती है, लेकिन इस योजनाओं को यहाँ की सरकार इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह विफल हुई है। या तो उन्होंने योजनाओं का नाम बदल के कहीं ना कहीं कोशिश की। आज मेरा ये 2 दिन का प्रवास में मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला, हर कम्युनिटी को मिला, हर क्षेत्र में गया और कोशिश करता हूं कि मैं बूथ तक जाऊं, पोलिंग बूथ तक जाऊं। और पोलिंग बूथ तक जाने के बाद भी मुझे पता चला है कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो इस सरकार ने काम करना था, चुनाव के पहले इस मैनिफेस्टो में इस सरकार ने वादा किया था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही हम पक्का आवास देंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना को जहां लागू किया है वहां करीब 1,80,000 रुपया का किस्त उन गरीबों को मिला है। उसके बाद जो शेयर होता है, उसके बाद जो सरकार को उस योजनाओं को पूरा करने में मदद करनी चाहिए, बजाय उसकी वो हर लाभार्थी के पास जाके उनसे इस योजनाओं से अपना नाम विड्रॉ करवा रहे हैं। और एक तरीके से ये सरकार गरीब की चिंता करने के बदले गरीब का शोषण कर रही है। हर घर नल पहुंचाने की योजना है, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। हर घर बिजली पहुंचाने की योजना है, वो भी नहीं कर रही है। यहाँ की सरकार पूरे 5 साल में जो काम किया है, एक तरीके से दिवालियापन हो गया। ये बैंक करप्सी की ओर ये सरकार है, और एक तरफ जो फंड जो भारत सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी की ओर से स्टेट को जाता है, उसका पूरा यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है। तो ये पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कारण यही है कि ये जो सरकार है वो फैमिली सेंट्रिक चलती है। या परिवार के साथ जो अपने कुछ जो लाभार्थी है जिनको ये पैसा देते हैं, जो पैसा फंड देते हैं, उनके लिए काम करती है। आज 2 दिन के प्रवास के बाद मुझे ये भी पता चला कि यहाँ भारत सरकार ने काफी काम किया है। काकीनाडा का हाईवे 110 किलोमीटर का बनाया है, और भी ग्रीनफील्ड हाईवे सैंक्शन भी किया है। 2 नेशनल हाईवे बनाए हैं, कादिरी का हाईवे भी बनाए हैं। यहाँ तक कि यहाँ 2 लाख से प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाना का काम किया है। यहाँ पहुंचाने का काम करना था, वो अभी पूरा नहीं किया है। यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि का काम भी, योजना का लाभ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। एक तरीके से जो पीएमवाई योजना का काम करना था 30 लाख लोगों का, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। और गरीब कल्याण का जो राशन जाता है वो भी गरीब तक पहुंचता नहीं है। या तो यहाँ उन्होंने हर विलेज में अपने वॉलेंटियर्स रखे हैं, जो वॉलेंटियर्स को सैलरी सरकार देती है और वो पार्टी का काम करते हैं। और वो वॉलंटियर्स या तो नीचे गरीब लोगों को डराता है, धमकाता है, या उनके पास अगर कोई ये योजना सीधी जो पहुंचती है, आवास की हो, गरीब के पास राशन हो, बिजली हो, जल है, ये सब के लिए ये लोग बाधा डालते हैं। या तो ये लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि ये योजना हमारी सरकार दे रही है। एक तरीके से वो प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, सरकारी पैसे से कर रहे हैं। ऐसे वॉलंटियर्स की जो समस्या है, वो वॉलंटियर्स का जो यहाँ की जनता के प्रति व्यवहार है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वॉलंटियर्स या तो डराते हैं, धमकाते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक तरीके से पूरा राज्य में अराजकता चला है। अर्थव्यवस्था भी ठप है और राजनीतिक व्यवस्थाओं ऐसी बनी है कि वो सरकार जब कोई आवाज उठाता है, गरीब है, कोई कम्युनिटी है, तब उसको दबाया जाता है, उसको डराया जाता है, कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई हारने आता है, जब निराश होता है, तब ये व्यवहार करता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की ये हताशा, निराशा है
जो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, विशेष तौर पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको डराने का धमकाने का काम बंद करें। आज मैं इस प्रेस माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपका और हमारा जिम्मेदारी है कि गरीब का काम करें। जो योजनाएं भारत सरकार बनाती है, जो योजना भारत सरकार की है, उसका हेल्प लेके आपको इन गरीबों का कल्याण करना चाहिए। गरीब तक ये कल्याणकारी योजना पहुंचानी चाहिए, बजाय आप उनको डराते धमकाते हैं या तो अपने नाम से चलाते हैं। ये काम बंद करें। और आने वाले समय में मुझे जिस तरीके से यहाँ का संगठन मैंने देखा है, संगठन के कार्यकर्ता, हमारे ऑफिस बेरर, हमारे स्टेट का यूनिट, इन सब की सक्रियता देख के मुझे पूर्ण भरोसा है, ये संपूर्ण विश्वास है कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिंदूपुर लोकसभा बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये हम जीत के दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।